ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर। আমরা এখনো হারাম মনে করি আর তার উপরে যথেষ্ট সেই হারাম থেকে দূরে থাকি। তো ওই যে নয়, আমরা হেলেবাদ আলাইহিস সালামের উপরে, ওনার সিরাতের উপরে চলি, আল্লাহর রাসূলের সিরাতের উপরে এবং ওনার সেই রাস্তার উপরে। এটা আমরা দুনিয়াওয়ালাকে জানাতে চাই যে দেখো, যে নবী যা কিছু হারাম করেছে আমরা হারাম মেনে চলছি, আর যা কিছু হালাল করেছে সেটা হালাল ভেবে চলছি। কিন্তু দুনিয়াওয়ালা একসাথে যেন না মেলায়, যারা হুসাইন হুসাইন করছে, যারা শরাব পান করছে, তারা এরা একই নয়। দুনিয়ায় হতে পারে এরকম কোন ব্যক্তি যে নিজেকে হোসেন আলাইহিস সালামের সাথে মনসুব করছে, কিন্তু সে শরাব পান করছে, হতে পারে না, হাকিকাতান হতে পারে না, কিন্তু মুখে যে বলছে সে শরাব পান করছে। এমন তো মুসলমান, যাদেরকে আমরা মুসলমান বলি, আল্লাহর ওয়াহদানিয়াতের উপরে ঈমান রাখছে, বলছে আল্লাহ এক, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহর রাসূল, তারপরেও শরাব পান করছে না। তার মানে কি সে মুসলমানের ভিতরে শরাব জায়েজ? আপনি বলবেন না, ওই ব্যক্তির ভিতরে কমি আছে। ওই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করছে, তার ভিতরে কমি আছে। শরিয়াতের ভিতরে এটা জায়েজ করেনি, ঠিক তেমনই যদি কোনো ব্যক্তি এমন করে, তার ভিতরে কমি আছে, শরিয়াতের ভিতরে জায়েজ নয়। এটা বোঝার জিনিস আছে। ঠিক সব ফেরকাই থাকতে পারে। অনেক জনা ব্যক্তি, 100 জনা যদি একটা গ্রামে বসবাস করে, তারা কলমা পড়ে, তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে জিনিস হালাল, তার সাথে সাথে যে জিনিস হারাম সেই কাজও করছে। তার মানে কি ইসলাম কি খারাপ হয়ে গেল? নয়, সেই ব্যক্তি ইসলামকে মানতে পারলো না, সেই ব্যক্তি ইসলামের উপরে চলতে পারলো না। ইসলাম বলেনি তুমি শরাব পান করো, ইসলাম বলেনি তুমি জিনা করো, ইসলাম বলেনি তুমি জুয়া খেলো, ইসলাম বলেনি যে তুমি অন্যের উপরে জুলুম করো, ইসলাম বলেনি তুমি অন্যের উপরে অত্যাচার করো। যে করছে তাকে দোষারোপ করা দরকার, সেই ব্যক্তি করছে, কিন্তু তার মানে এই নয় ইসলাম করছে। যেটা বলবে সে ভুল করছে, তাকে একটু জানা দরকার। ঠিক তেমনই ভাই, আমরা যেটি করি সেটি হচ্ছে নামাজ, রোজা, হজ, যাকাতের সাথে সাথে জুমার নামাজের পরপরই মাতম, নামাজের মুসাল্লায় নামাজ পড়ে তারপরে যদি করি আহলে বাইতের ফাজাইল এবং নবী জানার জন্য কেঁদেছেন তার জন্য 2 ফোঁটা অশ্রু আমাদের চোখ থেকে ঝরাই, নামাজ পড়ি তার সাথে সাথে করি। এরকম নয় যে নামাজ ছেড়ে করি, এমন নয়। আমাদের শিক্ষা এই, কে যদি এক হাতে কোরআন থাকে তো এক হাতে আহলে বাইত, যদি নামাজ পড়ি সঙ্গে তার সাথে সাথে আযাদারি, যদি আযাদারি করি তার সাথে সাথে নামাজ, যদি আহলে বাইতের উপরে করুণদান করি তো ইসলামকে উপচার করার চেষ্টা করি। কারণ সব জায়গায় আমরা দুটো জিনিসকে নিয়ে চলছি, কারণ আল্লাহর নবী দুটো জিনিস ছেড়ে দিয়েছে। পথভ্রষ্ট যদি না হতে চাও, দুটো জিনিসকে ধরে রাখো, আর এই দুটো জিনিস এক অপর থেকে আলাদা হবে না। ওই জন্য আহলে বাইত শিক্ষা দেয় যে আমার হাদিসের ভিতরে যদি কোনো আমাদের হাদিস পাও যেটা কোরআনের মোকাবেলায় আসে, তাকে দিওয়ালে ছুঁড়ে মেরে দাও। এটাই হচ্ছে আহলে বাইতের শিক্ষা, যে আমরা আহলে বাইত কোরআন থেকে আলাদা নয়। যদি কোনো আলাদা মনে হয় সেটা আমাদের ভিতরে নয়। সালাত পড়ুন মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মাদের উপরে। সেটা আমাদের ভিতরে নয়, কারণ আহলে বাইত কোরআন থেকে আলাদা হবে না। যখন আলাদা হবে না, যদি আলাদা কিছু মনে হয় সেটা তাদের দিকে মনসুব করা হয়েছে, ওনাদের নয়। আর এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। আজাদার কে আমাদের সর্বক্ষণ, কে আমরা অনেকেই জানি, কারণ এলাকা এমনই যে আমাদের ভিতরে আমরা একটা তাসাউর, মাথায় একটা চিন্তা ভাবনা নিয়ে বসে আছি, কে যারা মহরম করে সবাই এরকম না। ভাই আপনি দেখেন, গবেষণা করে তারপরে তার ব্যাপারে কথা বলেন যে এদের কাজ কি ভুল, সেটা বলেন আপনাদের এই কাজ ভুল হচ্ছে, শরিয়াতের বাইরে কাজ হচ্ছে, সেটা বলেন। না হলে সবাইকে এক করে দিয়ে গুনাহগার হয়ে লাভ নেই। আমি কারোর ব্যাপারে জানলাম না, তার ব্যাপারেও এমন কথা বললাম যা যে কথা তার ব্যাপারে মনে করেন আমি এমন কিছু বললাম না, আপনি বললেন কে আপনি তো এমন বলেছেন, আর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া অনেক বড় গুনাহ।
এই গোনা থেকে বাঁচতে হবে। আর আমাদের সকলকে এটা পরিচয় দিতে হবে যে ভাই, নবী যখন কেঁদেছে ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের দুঃখ স্মরণ করে, যখন ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালাম জীবিত ছিলেন, ছোট ছিলেন, জানাবে উম্মে সালমার ঘরে জিবরাইল আমিন এসে যখন ওনাকে শোনালেন কে আপনার উম্মতি, আপনার উম্মতের ভিতরে কিছু লোক, কিছু ব্যক্তি ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামকে কতল করবে। রাসূল আকরাম কাঁদলেন, রাসূল আকরাম কাঁদলেন। তো যখন জীবিত থাকা অবস্থায় কেঁদেছেন, এখনো হুসাইন আলাইহিস সালাম তো শহীদ হননি, তখন নবী কেঁদেছেন। আর আমরা তো সেই 10 মুহররম 61 হিজরিতে উনি শহীদ হওয়ার পরে যখন সেই ঘটনা শুনি তো কাঁদি। আপনি বলেন চোখে জল আসবে কিনা? একটা কোনো ব্যক্তি যদি আমাদের সামনে থাকে আর সেই ব্যক্তি যদি শহীদ হয়ে যায়, আর কেমন ভাবে কোনো সাধারণ শাহাদাত নয়, কেমন ভাবে কোনো সাধারণ শাহাদাত নয়, এমন মানুষের মধ্যে চিন্তার করার বিষয়। অক্ষরগুলো পড়ার পর তাকে ভাববে, ভাবার পর তার মনের মধ্যে প্রশ্নগুলো আসবে। কারবালা থেকে কুফা, কুফা থেকে শাম, 4 কিলোমিটার। কারবালা থেকে কুফা প্রায় 90 কিলোমিটার। কুফা থেকে শাম যেটা 1200 কোষ। যে মঞ্জর 61 হিজরি 10ই মুহররম আসরের ওয়াক্ত, 72টা লাশ মোবারক, তারপর যে মঞ্জর শুরু হচ্ছে স্বামী গরিবার। সেই স্বামী গরিবারই এখানে দৃশ্যটাকে এখানকার আজাদার ভাই তুলে ধরেছেন এবং তাকে সম্পূর্ণভাবে আপনাদের কাছে তুলে ধরবেন আমাদের জনাব মাওলানা আলী মোহাম্মদ সাহেব, যিনি কলকাতা মেট্রোপলিস থেকে এসছেন, যিনার লাভ উর্দু চেষ্টা করবেন আপনাদের সামনে। বাংলাতেও হয়তো কিছু কিছু শব্দ আপনাদের কাছে তুলে ধরবেন, কিন্তু অধিকাংশ তিনি লাভ ইউজ করবেন উর্দুতে। তো আশা করি আপনাদের কারোরই অসুবিধা হবে না। যে মঞ্জর তিনারা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে তুলে ধরেছেন, তিনি সেটাকে সম্পূর্ণভাবে আপনাদের সামনে আরো সুন্দর করে তুলে ধরার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা। নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া আলী, ইয়া আলী। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المدين، الذين ذهب الله عنهم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. ابن الحسن إمام مهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم، وقال
قاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. दुरूद पढ़ दे मोहम्मद करबला और करबला का वाक़या समझ में नहीं आता। हर जगह बात जो है क्लियर नहीं हो पाती कि करबला में हुआ क्या। करबला में शहीद हो गए इमाम हुसैन, 72 शहीद करबला में। मारने वाला काफिर नहीं था, मारने वाला मुशरिक भी नहीं था, मारने वाला कौन था? मुसलमान। अल्लाह के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब का नवासा हुसैन, अल्लाह के हबीब का नवासा हुसैन। नवासा किसका? रसूल अल्लाह का। नाम क्या है? हुसैन। क्या हुआ? बोला करबला में शहीद कर दिया, करबला में गला काट दिया, घर वालों को मार दिया, 72 शहीद को जो है खत्म कर दिया। क्या किया? ताकि यजीद हुकूमत कर सके। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद। यजीद ने इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया। समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। तो कोई ऐसा उदाहरण है जो इस जमाने में हो रहा है? बोले सब देख रहे थे, सब खामोश थे और हुसैन का गला कट रहा था। करबला में हुसैन शहीद हो रहे थे, इतने मुसलमान थे, कुछ बोला नहीं किसी ने, सब खामोश थे। तो इसका मतलब घटना झूठा है। घटना क्या है? झूठा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत सारी किताब लिखी गई, क्या ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो साहब ऐसा आज के जमाने में कुछ बोलिए, कुछ ऐसा उदाहरण है? तो आइए कोई उदाहरण देते हैं साहब। फिलिस्तीन का नाम सुना है? गज्जा का नाम सुना है? फिलिस्तीन और गज्जा का नाम सुना है? वहां का वीडियो देखा है? भूखे बच्चे, पानी नहीं है, खाना नहीं है। तो बोले इस जमाने में 57 देश मुस्लिम, कितना 57 कंट्रीज मुसलमान है, और एक जो है गज्जा छोटा सा इलाका एरिया है, वहां का बच्चे को पानी नहीं है, उसके पास खाना नहीं है, उसके पास दाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, घर पूरा जो है घर उजड़ गया है, उसका रहने को घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, दवा नहीं है, मेडिकल नहीं है, हॉस्पिटल को इसराइल ने मार दिया, खत्म कर दिया। तो करबला का घटना अगर किसी को नहीं समझ में आता, करबला का वाक़या को अगर किसी को यकीन नहीं होता, तो मुझको मैं लेके आता हूँ कहाँ? फिलिस्तीन में। फिलिस्तीन में आज तो मीडिया का दौर है, आंख तो बंद नहीं कर सकते, कोई रावी भी यहाँ पर लिखेगा नहीं, ठीक है ना। कोई मुहद्दिस आके जो है ये नहीं कहेगा नहीं फिलिस्तीन वाले ये इसराइल पर जुल्म कर रहे थे। कोई भी रिवायत अभी जो है नहीं लिखी जाएगी। कोई जो है तारीख लिखने वाला गलत तारीख नहीं लिखेगा। वो अलग बात है कि जो है जो मीडिया जो है वो अगर इस्राएली मीडिया है तो वो अपने आप को मजलूम ही बताएगा। देखो इसराइल एरकम हो गए क्या करे, बोले गज्जा वाला करे, मुसलमान करे, क्यों मानवे भाई? आज सब ओपन है, सब कुछ मीडिया में आ रहा है। अगर किसी को करबला नहीं समझ में आती तो फिलिस्तीन आए, गज्जा आए, देखे कि वहां पर जितना जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। अब आइए साहब, करबला पर अगर ऐसा हुआ तो सबको रोना चाहिए, सबको गम मनाना चाहिए। अगर ऐसा है तो सबको गम मनाना, जितना मुसलमान फिरका है। बोले मुसलमान फिरका कितना होगा नबी के बाद?
नबी के बाद कितना फिरका होगा? 73 फिरका, 73 फिरका मुसलमानेर मध्य हो गए। हो भी गया है, कितना हो गया, अभी कितना बाकी है? तो साहब ये जो फिरका बन रहा है सब ये कहेगा कि साहब अब तो मीडिया में देख रहे हैं, वीडियो आ रहा है, तो फिलिस्तीन में कौन रो रहा है? बोले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला रो रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाला रो रहा है। तो सब क्यों नहीं आ रहा है? सब क्यों नहीं आ रहा? बोले सारा मुसलमान अगर आ जाए तो एक जुमला निकला है, बोलते हैं कितना कंट्री है? 57। कहते हैं कि भाई क्या किया जाए, 57 कंट्री में 56 कंट्री जो है वो बहन है और एक कंट्री, बोलिए ना साहब, एक कंट्री भाई है। तो 57 कंट्री में 56 कंट्री जो बहन है वो तो पर्दा में रहेगा, वो अपने घर में रहेगा, बहन तो बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन निकलेगा कौन? जो होगा भाई। भाई का मतलब गुंडा नहीं, मस्तान नहीं, दादा नहीं, भाई का मतलब। अब आइए साहब यहाँ पर रिजल्ट देते हैं, उसके बाद बात खत्म। हुसैन पर सब क्यों नहीं रोता? बोलते नहीं हमरो कानी कांदी बोले है ना, हमरो गिरिया कोरी कांदी, हमरो गम मनाई, हमरो मुहर्रम कोरी। लेकिन साहब मुहर्रम करने का मतलब, मुहर्रम अगर सही मुहर्रम करता है तो फिलिस्तीन वाले के लिए हाथ उठाता है कि नहीं उठाता है? फिलिस्तीन वाले की हिमायत करता है कि नहीं? अब आइए तारीख में अभी 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर 57 कंट्री में अगर कोई हुसैन करके इस्राइल का जवाब दिया है तो बताइए सऊदी ने किया है, बहरीन ने किया है, कतर ने किया है, इराक ने किया है? आप बोलिएगा ना 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 एरा किच्छु कर लो ना, है ना? अब कहिए भाई सऊदी क्या है? मुसलमान कंट्री, किच्छु करे थे? बहरीन किच्छु करे थे? कतर कुछ किया है? सूडान को बोलता है इस्राइल आओ और ईरान को मारो। तो अब जो है आवाज किसने उठाई? देखिए फिलिस्तीन में एक भी अहले बैत का चाहने वाला नहीं है। फिलिस्तीन में हमरा जेरकम आची बोलছে আমরা কি আছি अहले बैत चाहने वाला, काला जामा गाय আছে बोले हरा शिया, है ना? तो फिलिस्तीन में एक भी शिया बोल के नहीं है, जितना भी है सब सुन्नी, जितना भी है अहले सुन्नत। अब उसमें अहले सुन्नत में जितना भी फिरका होगा उससे हमको कोई मतलब नहीं। अहले सुन्नत है तो फिरका होगा। अब अगर फिरका है तो सब सुन्नी है, शिया कोई भी नहीं। एक मस्जिद शिया की नहीं है, कोना इमाम बाड़ी शिया दे नहीं है, वहां पर शिया का कुछ भी नहीं है, नाम भी नहीं है। लेकिन फिलिस्तीन के लिए मदद करने वाला शिया ही है। फिलिस्तीन के लिए अगर कोई मिसाइल मार रहा है इसराइल पर तो शिया ही है। क्या सऊदी के पास मिसाइल नहीं है? बोलता ना एखाने एसो और एकांती के जो है हमला करो ईरान ऊपर। कतर में क्या किया? कतर मुसलमान कंट्री, लेकिन क्या है अपना बेस दिया कतर ने ईरान पर हमला करने के लिए। तो मैं एक दावत देता अपने तमाम मुसलमान भाइयों के लिए कि भाई एक तो चेष्टा करें, तो कुछ सोचिए, कुछ समझिए, हक को पहचानिए, हक को पहचानिए कि जो इस्राइल का साथ दे रहा है आप क्या उसके साथ हैं? जो इस्राइल का साथ दे रहा है क्या आप उसके साथ हैं? या ये कहा जाए कि जो फिलिस्तीन पर अत्याचार हो रहा है क्या आप खामोश हैं? तो अगर आज मुसलमान फिलिस्तीन पर जुल्म होता हुआ देखे और चुप रहे तो कल वैसा ही मुसलमान करबला में हुसैन का गला कटता नजर आ जाएगा, लेकिन वो मुसलमान कभी हुसैन की तरफ आकर बोलेगा नहीं। वो मुसलमान कभी भी हुसैन
हुसैन के तरफ। कभी भी ये हदीस हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा, कभी ऐसा आकर वो बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर बोल देगा तो जो है पूरा समाज उसको कहेगा कि राज तो अन्य लोग हो गए, तो हक का साथ देने वाला अन्य लोग हो जाए, लेकिन कुछ होगा, फर्क होगा। रसूलुल्लाह ने तमाम मुशरिकों काफिरों के खिलाफ जो है आवाज उठाई, तुम्हारे 360 खुदा, हमारा একটা खुदा। तो उन लोगों को तो बुरा लगा होगा, मुशरिक को तो बुरा लगा होगा। ये तो हमारे तो खुदा আছে বলছে না, কেউ কিছু না, বলছে একটা खुदा जो देखा जाए ना, है ना, जो समझ में नहीं आएगा, जो दिखता नहीं है, उसको बोलता है ये खुदा है। जो दिखता नहीं है उसको बोलता है खुदा, और जो दिखता है बोलता ना ये तो भूत আছে, ये तो मूर्ति আছে, ये ठाकुर है। तो बताइए, जब मुशरिकों के मजमे में, काफिरों के मजमे में एक आदमी हक पहचान कर, हक की आवाज बुलंद करके, आज पूरा मुसलमान पूरी दुनिया में उसी एक आदमी की मेहनत से आज सब मुसलमान हैं। अगर रसूल उस वक्त बुत पूजने वाले को, काफिरों को बोलते ना ये ठीक, तो भीड़ में अगर बोलते ठीक, तो आज ये मुसलमान होता। आज अगर जो बोलते ठीक है, আমাদেরও একটা खुदा, তোমাদেরও একটা खुदा, बोले हाँ ये ठीक चलेगा। सकीना बो छिलो केंदे बाबा फिरे एशो बंदी হলো তোমার বাবা ফিরে এসো সকিনা বলছিল কেঁদে 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 বাবা ফিরে এসো এতিম হলো তোমার মেয়ে, দেখো আমার বাবা। এতিম হলো তোমার মেয়ে, দেখো আমার বাবা। সান্ত্বনা কেউ দেয় না আমায়, বাবা ফিরে এসো। সকিনা বলছিল কেঁদে বাবা ফিরে এসো। সকিনা বলছিল কেঁদে বাবা ফিরে এসো। চাদরকে सुगरा से मिला दो, बीमार बहन का मुझे चेहरा ही दिखा दो। बाबा बाबा
से मिला दो, सुगरा 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 से मिला दो। एक बात है सदगम की घटा छाई है मुझ पर, एक बात है सदगम की घटा छाई है मुझ पर, फल बरछी का टूटा है मेरे सीने के अंदर, ए बाबा न बच पाएगा अब आपका अकबर, बीमार 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 बहन का मुझे चेहरा ही दिखा दो, सुगरा से मिला दो, सुगरा से मिला दो, सुगरा से मिला दो, सुगरा से मिला दो। आता है मुझे याद मदीने का वो मंजर, मैं आऊंगा आया था ये बीमार से कहकर, अब कहना जा देता है ये तेरा बराबर, बीमार 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 बहन का मुझे चेहरा ही दिखा दो, सुगरा से मिला दो, सुगरा से मिला दो, सुगरा से मिला दो, सुगरा से मिला दो। यजीदियत 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 नारे सलावत।